हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये कहाँ कहाँ हमारे आसपास वर्ल्ड में अप्लाई होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Why do we slip when we step on a banana peel? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? Let us study the chapter to find the answer to such questions. तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़, लेट्स से क्रिकेटर ने बैट से क्या मारा, बॉल मारा, तो क्या होता है, कहीं तो जाके रुकता है, राइट? चाहे वो सिक्सर लगाओ चाहे वो फोर हो, राइट? कहीं पे तो जाके रुकता है और वो खुद ही रुकता है। वैसे ही जब ड्राइवर कार में ब्रेक लगाता है तो वो भी रुक जाती है, राइट? तो हम ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉल से भी खेल रहे हो तो वो बॉल भी कहीं जाके रुक जाती है, राइट? यहाँ तक सब सहमत है? तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और लेट्स गेट इनटू द आवर टॉपिक विच इज फ्रिक्शन. Friction is a force that comes into play when two surfaces are rubbed against each other. Friction is responsible for stopping the moving objects after a while. Friction comes into being when brakes are applied in a car, when a person is walking, when a pencil makes a mark on paper, and when a nail is driven into wood. So on and so forth, right? So basically friction क्या है? फ्रिक्शन एक टाइप की फोर्स होती है, राइट? जो दो सरफेस के ऊपर लगती है। दो सरफेस जब रब होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब जो उसके बीच में फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, राइट? यही फ्रिक्शन फोर्स है जो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट को रोकने में हेल्प करती है, राइट? तब भी जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स ही किस में आता है? एक्शन में आता है. इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, we would not be able to walk. A pencil would not make a mark on a paper and a nail would not be firmly fixed in wood and so on, right? तो बेसिकली अगर हम क्रिकेट खेल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, राइट? तो किसकी वजह से हो पा रहा है? ये फ्रिक्शन की वजह से हो पा रहा है, ओके? क्योंकि ये हमें क्या रोकती है, राइट? वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है. The force of friction always act in a direction that is opposite to that of the applied force or motion. For example, if a book lying on a smooth surface table is pushed from the left, it moves a little distance to the right and stops due to frictional force acting on it. Similarly, if the book is pushed from the right, it moves to the left and stops again due to the friction. Right? तो अभी हमने क्या समझा कि वो फोर्स जो है वो क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. फ्रिक्शनल फोर्स किसमें? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ओके? तो लेट्स से आप एक बुक को एक तरफ से पुश कर रहे हो तो वो उस तरफ मूव करेगी और फिर वो क्या होती है? रुक जाती है. वो रुक क्यों जाती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ऑल राइट? तो वो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है. नाउ लेट्स रीड अबाउट अ साइंटिस्ट गियोम अमोंटुम who was a French physicist and engineer who made scientific contribution to the field of friction. He conducted extensive experiments and observation to understand the behavior of frictional forces between solid surfaces. Amontinus developed the laws of friction which laid the foundation of our understanding of the relationship between frictional force and the normal force applied on an object. He proposed that frictional force is directly proportional to the normal force and is independent of the contact area between the surfaces. He also investigated the effects of different factors of friction, such as the nature of the surfaces, the presence of lubricants and the roughness of the contact area. Right? तो ये इन्होंने क्या बताया? इन्होंने हमें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया और इन्होंने क्या बोला कि वो कैसे नॉर्मल फोर्स से डिफरेंट होती है, राइट? कैसे और उसका रिलेशनशिप क्या है नॉर्मल फोर्स से. सो बेसिकली इन्होंने क्या बताया हमें फ्रिक्शन के बारे में कि जो वो फोर्स है वो कैसे इंडिपेंडेंट है, किससे? कॉन्टैक्ट एरिया से, राइट? और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? नॉर्मल फोर्स से. सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक, द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. When
we observe a surface under a powerful microscope, we find that there are irregularities on it. Even a smooth looking surface has a large number of irregularities. For example, now let's get to the next page. So for example, the surface of a good Sumika table looks very smooth to the unaided eye, but if it is seen under a powerful microscope, there will be a number of peaks and valleys, that is irregularities in the surface. These irregularities get interlocked when one object tries to move over another. This is what opposes the motion of a body trying to move and give rise to friction, right? So basically होता क्या है कि हर सरफेस में, कोई भी सरफेस हो, राइट, उसका सरफेस हमें दूर से बिल्कुल क्या स्मूथ लग सकता है, बट वो एक्चुअल में कैसा इरेगुलर होता है. वैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट भी इरेगुलर होता है, राइट. तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, ये इसमें फिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, राइट, जिसकी वजह से क्या फ्रिक्शनल फोर्स रखता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट. इसी की वजह से क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता. ऑलराइट. If the two surfaces in contact are smooth, friction is very small. If the surfaces are rough, friction is large. So we observe that the nature of surface plays a very important role in the origin of friction. Friction cannot be reduced to zero, howsoever smooth the surface may be. More the irregularities on the two surfaces in contact, more is the force of friction. Right? So basically क्या, जितना प्लेन, जितना स्मूथ क्या होगा, सरफेस होगा, उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, राइट, क्योंकि उतने कम इरेगुलरिटीज होगी, राइट, उतनी कम इंटरलॉकिंग होगी. बट क्या हो सकता है, हम कभी भी फ्रिक्शन को क्या जीरो नहीं बना सकते, क्योंकि हम कितना ही स्मूथ सरफेस ले लें फिर भी क्या उसमें इरेगुलरिटीज होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगना क्या है, होता ही होता है, फ्रिक्शन लगेगा ही. नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स अप एंड लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. टेक टू आइडेंटिकल रबर बॉल. Roll one ball on a rough surface and the other on a smooth surface with the same force. Which ball covers a greater distance? The rough surface will have large number of irregularities than the smooth surface. The force of friction is greater in case of the rough surface. This causes the ball rolling on the surface to stop earlier. Now, place one of your rubber balls with a metal ball of the same dimension and roll the ball. Which ball covers a greater distance this time? The heavier metal ball will press the surface harder. The interlocking between the metal ball and the surface thus becomes stronger, resulting in greater force of friction. This causes the metal ball to stop earlier. Thus, it is concluded that the force of friction depends on the surface, depends on the nature of the surface and mass of the moving object, right? तो बेसिकली हमने इससे क्या समझा, आपको क्या करना है, दो आइडेंटिकल बॉल लेनी है, रबर बॉल, राइट, और उसको एक सरफेस पे आपने क्या, एक को रफ सरफेस पे मूव करना है, एक को किससे, हार्ड सरफेस, मतलब जहाँ पे इरेगुलरिटीज, रफ सरफेस पे मूव करना है. तो आप देखोगे जो बॉल को आप स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहे हो वो कितना दूर तक जा पाई है, और जो रफ सरफेस पे जिस बॉल को मूव किया वो क्या थोड़े पहले ही रुक गई, राइट, काफी पहले ही रुक गई, राइट. इससे हमें क्या समझ आया कि जो रफ सरफेस है वो क्या ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जबकि बॉल सेम ही थी, राइट. यहीं पे अब हम क्या करेंगे, उस बॉल को लेंगे जो क्या हुआ, जो रफ सरफेस पे मूव कर रही थी, और साथ ही में हम एक हैवी मेटल बॉल लेंगे. अब दोनों को हम डालेंगे सरफेस पे तो हम क्या देखेंगे, सेम सरफेस पे डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो मेटल बॉल है वो बहुत पहले रुक गई, जबकि जो रबर बॉल है वो बहुत आगे तक गई. इसका रीजन क्या हुआ, यहाँ पे जो मेटल बॉल थी, सिंस वो क्या थी, हैवी थी, राइट, उसने ज्यादा प्रेस कर पाया, और क्या वो जो इरेगुलरिटीज थी उसके बीच में ज्यादा अच्छे से इंटरलॉकिंग कर पाई, राइट. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेटल बॉल थी वो जल्दी रुक गई. तो इससे हमें ये पता चलता है जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ सरफेस और दूसरा मास ऑफ द मूविंग बॉडी, राइट. नेचर हमने देखा कि इरेगुलरिटी और मास से हमें क्या समझ आया कि जो हैवी बॉडी होती है उसमें क्या फ्रिक्शन ज्यादा लगता है. ऑलराइट. नाउ these observations bring forth the following facts. The force of friction acts in a direction opposite to the direction of motion, and second, depend on the nature of the surface in contact, and also depends on the mass of the body, right. Now let's study the properties of friction. These are some properties of friction. What are the properties?
So first, it is produced only when an object moves on another object. Okay? Friction always tries to prevent or stop the motion of the body, right? तो बेसिकली क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे हमेशा लगता है. ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे, क्योंकि तभी इंटरलॉकिंग पॉसिबल है, राइट? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फिर इंटरलॉकिंग पॉसिबल ही नहीं है, राइट? और ये क्या करता है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट को या मूविंग बॉडी को क्या करता है, स्टॉप करता है, राइट? नेक्स्ट थिंग, फ्रिक्शन नेवर इनिशिएट्स मोशन, इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू मोशन, राइट? तो फ्रिक्शन क्या हमेशा रिस्पॉन्ड करता है मोशन में, राइट? मोशन को रिस्पॉन्ड करता है, कभी वो शुरू नहीं करेगा मोशन, राइट? फ्रिक्शन वियर ऑफ द सरफेस कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, राइट? तो फ्रिक्शन क्या करता है, वियर ऑफ कर देता है, मतलब जो कॉन्टैक्ट है दो बॉडी के बीच में उसको क्या, इरेगुलर बनाएगा. ओके, लास्ट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन कॉन्टैक्ट, राइट? जितना एरिया कॉन्टैक्ट में है उससे क्या इंडिपेंडेंट है, राइट? कि फ्रिक्शनल फोर्स कम या ज्यादा इस बेसिस पे नहीं लगेगी कि कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, राइट? किस बेसिस पे लगेगी, ये दो बेसिस पे. ओके, now let's study about the types of friction. Friction is of three types: static friction, sliding friction and rolling friction. Let's get into this topic even more deeper and let's go to the next page. So first comes the static friction. The friction that comes into play when the objects are at rest relative to each other is known as static friction. It is a static friction which resists the initial motion of a stationary object. It is because of the static friction that a wooden block or a piece of stone placed on a ramp does not slide down unless sufficient force is exerted or the ramp is made steeper. Right? तो static friction मतलब क्या होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जब कब लगती है, जब ऑब्जेक्ट जो है ना एक दूसरे से क्या रेस्ट के पोजीशन में होते हैं. रेस्ट मतलब वो मूव नहीं कर रहे. रिलेटिव, देखो यहाँ पे क्या है, एक ये है और एक ये है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? ये वैसे देखा जाए तो कितना नीचे मूव करना चाहिए इसको, राइट? मूविंग होना चाहिए ये, बट एक दूसरे से क्या रिलेटिव, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन में, मूव नहीं कर रहे, राइट? तो इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लाइक, राइट? तो ये क्या करता है, इनिशियल मोशन जो होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का उसको रेजिस्ट करता है, इनिशियल मोशन, राइट? Now let's get to an information that you must know. The static friction varies from 0 to the value when the body just begin to move. It keeps on increasing when the force applied on the body is increased. The maximum friction that balances the force applied to a body resisting on a solid surface so that the body does not move is called limiting friction. The force required to overcome a static friction gives a measure of the limiting friction. देखो, अब जैसे ये वाला केस है, राइट? इसमें ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे फॉल करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड होगा, राइट? तो इसमें क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रही होगी, राइट? इसमें क्या फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रही होगी, क्योंकि ये इसको नीचे धकेल रहा है और ये क्या फ्रिक्शनल उसको रोकने की कोशिश करेगा, राइट? रोकने की कोशिश करेगा. तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे नीचे आएगा, राइट, एक टाइम आएगा जब ये मूव करना लग जाएगा, मतलब एक टाइम बाद तो ये नीचे खिसकेगा ही, राइट? तो वो जो फोर्स है कि जिस टाइम तक वो लिमिट करता रहा और उसके बाद क्या वो मूव करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें क्या बताता है, the force required to overcome a static friction gives a measure of the limiting friction, right? अब यहाँ पे जो static friction की जो force लग रही थी, right, उसको overcome करने के लिए कितनी force required हुई, वो क्या बताएगा, limiting friction के बारे में. All right, now let's move to the second type of friction, that is sliding friction. When the applied force exceeds the limiting friction, the body begins to move. The friction acting on a body when it is sliding over surface with a constant speed is called sliding friction. The force required to keep the body moving with the same speed gives a measure of the sliding friction. Sliding friction is generally lesser than the static friction
because after the object starts sliding, it takes less force to move it. The reason for this is that once the object starts sliding, the irregularities on the surface do not get enough time to lock into the irregularities on the other surface. So basically sliding friction क्या होता है? अब यहाँ पे क्या था, बॉडी तो पहले रेस्ट में थी, राइट? देखो जब आप कोई भी बॉडी को किसी ऐसे स्लैंटेड ऑब्जेक्ट पे रखते हो तो कुछ समय क्या होता है, वो वहीं पे रहती है, राइट? कुछ समय के लिए रहती है और फिर वो नीचे स्लाइड मूव करती है करना। तो जो कुछ समय के लिए रुक जाती है वो किसकी वजह से रुकती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, राइट? बट जब अब वो मूव नीचे करना स्टार्ट करेगी तो किसकी वजह से स्टार्ट करेगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से। ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से। The force required to keep the body moving with the same speed gives a measure of the sliding friction, right? कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है उस बॉडी को मूव करते ही रहने में, उसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वो वैल्यू देगा, राइट? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम लगता है एज कम्पेयर टू वर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि फोर्स कम लगते हैं, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है और इस समय क्या होता है कि जब वो मूव कर रही है तो वो इरेगुलरिटीज में टाइम नहीं है उसको क्या लॉक करने का। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट इनटू अ experiment. Now, so let's pull your sleeves. Place a brick on a table and attach it to a spring balance. Pull the spring balance horizontally with a small force. The spring balance records the force applied on the brick. This force is equal and opposite to the force of friction between the surface of the brick and the table. As the force of friction balances the force applied on the brick, it does not move. This gives the value of static friction. Keep pulling the spring balance harder till the brick begins to move. Note the reading on the spring balance at this point of time. This represents the force required to move, overcome the static friction. It also gives a measure of the limiting friction. Pull the spring into little more so that the brick begins to move. The force required to keep the body moving with the same speed gives the measure of the sliding friction, right? तो आप लोग को देखो क्या करना है कि एक ब्रिक लेनी है, उसको टेबल पे रखो, कैसे ऐसे लंबे तरीके से रखा और उसमें क्या आपने अटैच कर देना है? एक स्प्रिंग अटैच कर देना है, स्प्रिंग बैलेंस, राइट? स्प्रिंग बैलेंस को अटैच करोगे और यहाँ पे आपको रीडिंग दिखती जाएगी जितना आप उसको खींचोगे। तो आप उसको खींचो 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 धीरे से, ठीक है? तो एक टाइम आएगा कि आप खींचोगे बट क्या है, फिर भी ब्रिक ने मूव नहीं किया, राइट? तो क्या वैल्यू है वो? ये वैल्यू देता है किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। ऑलराइट, अब इसके आप बाद क्या करोगे कि एक टाइम बाद क्या होगा कि एक्चुअल में और फोर्स लगाओगे तो क्या कि जो ब्रिक है वो मूव करने लगेगी। तो किसका वैल्यू देगा आपको? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज रोलिंग फ्रिक्शन। The force that resists the motion when an object rolls over another object on or the surface is called rolling friction. However, magnitude of rolling friction is always smaller than the sliding friction. In fact, whenever required, sliding friction can easily replace rolling friction. This can be done by using wheels, roller bearings, ball bearings, etc. The suitcases and traveling bags are provided with small wheels. These wheels have very small amount of rolling friction which keeps in easy movement of suitcases and traveling bags. Now let's move to the next page. Similarly, roller skates are having small wheels which offer very small rolling friction and helps skater to move fast. Rolling this reduces friction and makes movement of the object easier. Let us perform the following activity to verify this further. So basically rolling friction क्या हुआ? The force that resists the motion when the object rolls over another object, right? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, फिर वो स्लाइड करने लगा, बट अब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, राइट? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल कर रहा है, उस टाइम क्या लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन, राइट? जो मैग्नीट्यूड होता है रोलिंग फ्रिक्शन का, मतलब जो वैल्यू होती है रोलिंग फ्रिक्शन की, वो हमेशा क्या? स्लाइडिंग से कम होगी, राइट? क्योंकि क्यों? अब वो रोल कर रहा है, वो और स्पीड में जा रहा है, तो उसके पास और कॉन्टैक्ट का समय कम है, राइट? तो इसीलिए क्या रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। ये हम कहाँ देखते हैं? जो भी बॉल बियरिंग हो गया, रोलर बियरिंग, राइट? या जो हमारे ट्रॉली बैग्स होते हैं उसमें होती है, राइट? जहाँ की फ्रिक्शन कम लगे। Alright, now let's move to the next thing, which is let's do an experiment to understand this concept. Okay, take 3 bottles cap of different sizes, marbles and a heavy object. Now mark the smallest cap as 1, the larger cap as 2 and the largest cap as 3. Put the inverted cap
1 inside cap 2 and then put the inverted cap 3 on the top of cap 2. Now put the heavy object on top of cap 3 and try to rotate the object by giving it a push. You will notice that the heavy object does not move easily and smoothly. Now remove the cap 3 and fill the space between cap 1 and cap 2 with marbles. Put cap 3 in such a way that it resists on the marbles without touching the cap or the table. Again, put the heavy object over cap 3 and try to rotate it. You will see that the object rotates easily and smoothly in this case. What is the reason behind it? In the first case, the static friction between the 3 caps prevented them from moving. This made the movement of the heavy object difficult, while in the second case, the static friction between the caps were changed into rolling friction by filling the gaps with marbles. Rolling friction is such smaller than static or sliding friction. So, the application of even a small force will make them heavy objects to move easily. राइट सो आप लोग को बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या करना है, अपने 3 बॉटल के कैप लेने हैं डिफरेंट साइजेस के, ओके और आपको उनको एक के ऊपर एक ऐसे करके रख देना है, ठीक है। और साथ ही में आपने क्या लेना है, हेवी ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। जैसे आप क्या ले सकते हो, कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट ले लो और साथ में आपने मार्बल भी लेना है, ठीक है। अगर अब आप इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो और फिर इसको स्लाइड करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा कि ये बहुत मतलब हार्ड लगेगा आपको, ठीक है। वो हो सकता है वो हैवी ऑब्जेक्ट है क्या वो मूव भी ना करे, ऑल राइट। बट अगर आप क्या करोगे, इन्हीं कैप्स के बीच में अगर आप क्या मार्बल डाल दो, ठीक है, मार्बल डाल दो, तो क्या होगा कि अब आप अगर इसको पुल करने की कोशिश करोगे तो हैवी ऑब्जेक्ट्स मूव हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इस समय तक जो कैप है, ठीक है, और जो दूसरी कैप है उसके बीच में क्या लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, राइट। उसके बाद क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था, बट अभी हम लोगों ने क्या किया, मार्बल्स ऐड कर दिए। मार्बल्स ऐड करने की वजह से क्या हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन मतलब कम फ्रिक्शन लगने लगा, राइट। तो इसकी वजह से ये मूव कर जाएगा। नाउ लेट्स गेट इनटू एन इंफॉर्मेशन। Gases and liquids when considered together are called fluids. When a body moves through a fluid, the fluid offers an opposition to the motion of body. This opposition is called fluid friction or viscous drag or simply drag, right? तो basically gases और liquids को क्या हम साथ में बोलते हैं, fluids, right? तो कोई भी जब बॉडी किसमें फ्लूइड के थ्रू मूव करती है, गैस या लिक्विड के थ्रू मूव करती है, तो उसको क्या एक ऑपोजिट मोशन मतलब एक ऑपोजिशन देखना पड़ता है, राइट। तो वो जो एक फ्रिक्शन उसको महसूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन, जो क्या फ्लूइड्स की वजह से लगता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग या फिर सिंपली ड्रैग, राइट। नाउ लेट्स गेट टू दिस क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बेसिकली डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। नाउ लेट्स study the advantages of friction. So what are the various advantages in our daily life? First, friction is responsible for starting and stopping motion. For example, if no friction existed between the road surface and the tire, the car would not move nor would it be possible to steer it. It is only the friction between the brake pads and the wheel rim that slows down and brings the car to stop, right? तो जो friction है वो किसके लिए, for starting and stopping the motion, right? मोशन को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए हेल्प में आता है, राइट। जैसे कि अगर आप देखो अगर कोई भी फ्रिक्शन ना हो, राइट, तो क्या होगा, रोड जो सरफेस है, रोड सरफेस के और टायर के बीच में, तो कार कैसे मूव ही नहीं कर पाएगी, राइट। आप ब्रेक अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। लेट्स से आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो और आप आगे बढ़ते जाओगे, वो रुकेगा ही नहीं वहां पे, राइट। सेकेंड थिंग, वॉकिंग एंड रनिंग नीड्स फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स of the feet or shoes and the road. This friction prevents us from slipping. If a person tries to walk on a wet floor, he tends to slip because water reduces the friction between his foot and the floor. Right? तो आपको किस में, वॉकिंग और रनिंग में भी हेल्प करता है। कहाँ कहाँ यहाँ पे फ्रिक्शन काम आ रहा है, हमारे शूज और किसके, रोड के बीच में, शूज और हमारे फिट के बीच में, राइट। वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कैसा होता है, आप फिसल जाओगे। जैसे कैसे, पानी के ऊपर अगर आप चलने की कोशिश करते हो या गीले फ्लोर पे, तो आप फिसलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। थर्ड थिंग, द फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड अ पेपर इनेबल्स अस टू राइट, राइट। पेन और पेपर के बीच में क्या फ्रिक्शन होता है, तो हमें लिखने में हेल्प होता है। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज।
another thing which is we are able to cut the things due to friction between the surface and contact, right? अगर हम कुछ भी चॉप करते हैं, कट करते हैं, तो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है? फ्रिक्शन. अदर एडवांटेजेस, it is friction that makes writing on the blackboard with a chalk as well as fixing a nail on the wall possible. Friction also plays a role in grinding and polishing stones and gems, sharpening knives, shifts and other cutting tools, needles and pins, right? तो जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइट, जैसे नेल फिक्सिंग, लिखना, राइट, चॉक बोर्ड पे लिखना, लेट्स से जो मैं अभी लिख रही हूँ वो भी क्या लिखना हुआ, राइट, सिजर से कुछ काटना, इन सभी चीज़ों में क्या फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. ये डिसएडवांटेजेस कहाँ पे आ जाती हैं? सो फ्रिक्शन मेक्स मूविंग और स्लाइडिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स डिफिकल्ट, राइट. अ लॉट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन. तो अभी हमने क्या देखा था कि जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा. तो क्या हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में फ्रिक्शन क्या एक डिसएडवांटेज देता है. It is responsible for wear and tear of various parts of machine. It also wears out materials like screws, ball bearings or soles of shoes, right? तो क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो wear and tear भी होता है, जैसे हम देखते हैं हमारे शू का जो सोल है वो घिस जाता है, राइट, बॉल बियरिंग घिस जाते हैं, स्क्रूज वगैरह, राइट. तो किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से. It also decreases the efficiency of machine as a part of energy is lost in overcoming friction, right? तो ये क्या एफिशिएंसी मशीन की भी कम करता है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, लेट्स से कोई भी मशीन अगर वर्क कर रही है तो उसका एक जो एनर्जी का पार्ट है वो किस में जा रहा है? वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने भी जा रहा है, राइट. अनदर थिंग, टायर्स ऑफ व्हीकल्स वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड्स, द grooves of tire disappear and the tires become smooth. This can cause serious accidents. तो आपने देखा होगा जो टायर्स होते हैं स्कूल किसके, साइकिल के और ट्रक्स के, उसमें कितने बड़े बड़े ग्रूव्स होते हैं, राइट. ऐसे लाइंस होती है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है. बट जब कॉन्टिन्यूसली रोड पे अगर व्हीकल मूव करता है तो क्या होता है? टायर घिस जाते हैं. सो नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. देयरफॉर द इंजन्स ऑफ कार एंड अदर मशीन्स become hot after running for some time and stop working, right. तो फ्रिक्शन क्या, अब जब एक चीज दूसरे के ऊपर क्या रगड़ेगी, राइट, तो क्या होगा? हीट भी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होता है? इंजन्स में या फिर जो बहुत सारी मशीन्स होती हैं उसमें वो हॉट हो जाती है और क्या कुछ टाइम बाद रुक जाती हैं काम करना. ऑल राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी रिड्यूस एंड इंक्रीज द फ्रिक्शन. ओके, सो sometimes the friction is desirable and sometimes not. So there are some ways to decrease and increase friction, right. तो अभी जितना भी हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ा, ये क्या था? इसी में अगर मान लो कि ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाए या कम फ्रिक्शन हो जाए, राइट, तो काम बिगड़ सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. तो हम पढ़ते हैं अभी कि उसको कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय द फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट, the moving parts of machines are coated with layer of grease or oil. This covers the irregularities in the surface of the moving part and makes them smooth. This helps in minimizing friction between the moving parts and prolong the life of a machine. The substance that are coated on moving part due to friction is called lubricants, right? In some machines, however, it is not advisable to use lubricants. The friction in such machine is reduced by providing an air cushion between the moving parts. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, अब कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे लेट्स से मशीन की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे नट्स होते हैं, है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो हम क्या ग्रीस या फिर ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक स्मूथ सरफेस मिल पाता है उन इरेगुलरिटीज़ को. इसको क्या हम क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, राइट. बट कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें क्या लुब्रिकेंट्स हम ऑयल या ग्रीस यूज नहीं करते, जबकि क्या वहाँ पे एयर का कुशन मिलता है जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर पाते हैं, राइट. तो क्या मेथड हुआ? यूजिंग लुब्रिकेंट्स. सेकेंड मेथड, सेकेंड वे, द रफ सर्फेसेस आर पॉलिश्ड टू एलिमिनेट द इरेगुलरिटी, thus मेकिंग द सर्फेस स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन टू ग्रेट एक्सटेंट. जो रफ सर्फेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं? पॉलिश भी करते हैं, राइट. Talcum powder is used as a lubricant. When we sprinkle powder on carom board,
The depressions on the surface on the board and the coins of the carom get filled with the powder. This makes the surface smoother and reduces friction between the board and the coins to the carom, making them move smoothly. ये राइट तो जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं ना, पाउडर डस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी इरेगुलरिटीज है राइट उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या पाउडर फिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्मूथ बन जाता है राइट. नेक्स्ट, use of wheels between surfaces moving over each other reduces friction as rolling friction is less than the sliding friction. ओके तो क्या हम करते हैं, व्हील्स यूज करते हैं अगर हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है फ्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन है ना, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है. नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. The tires of racing cars are quite smooth. There are no patterns, no designs on them. This reduces the friction between the tires and the road. It enables the car to move faster. Such types are called slicks. Okay? So जो racing cars होती है, जो उनके टायर्स होते हैं उसमें ज़्यादा irregularities नहीं होती, कोई भी पैटर्न नहीं होता. क्यों? ताकि फ्रिक्शन कम लगे. Alright? Now let's move to the next page. What is the other method? Ball bearing are used in machine to reduce friction. These are tiny small balls often placed between moving parts of machine which reduces friction and save a lot of energy. Right? तो हम क्या यूज करते हैं, बॉल बियरिंग. अगेन बॉल बियरिंग क्या प्रोवाइड करता है, एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है, और रोलिंग फ्रिक्शन हमें पता है क्या होता है, कम होता है, बहुत कम राइट. नाउ लेट्स गेट टू द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. We can increase the friction by the following methods. First method, tires of vehicles are designed with grooves on the surface to increase friction. A large friction provides a better grip to vehicle on the road and prevents them from sliding, skidding. Right? तो basically क्या होता है, vehicles के जो क्या होता है, जो टायर्स होते हैं उसमें क्या बहुत डीप ग्रूव दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज कर सके लाइक दिस, जबकि ताकि फिसले नहीं. नेक्स्ट थिंग, the surface of a matchbox and the head of the matchstick are deliberately made rough to increase friction. Right? तो matchstick में भी क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके right? इससे क्या होता है, friction increase होता है. Next thing, during rain the ground becomes slippery, so sand and gravels are spread on grounds to increase friction. Right? Rainy season में क्या, sand और gravels को, छोटे छोटे कंकड़ को फैला दिया जाता है उधर पे ताकि friction कम हो जाए. Right? Soles of the shoes are threaded to increase friction, right? देखो soles जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, इतने सारे threads होते हैं जिसकी वजह से friction कम हो सके. Now let's move to the next topic, which is friction due to liquid and air. Liquids and air also exert friction on the bodies moving through them. However, they offer much less friction as compared to solid surfaces. Right? अभी हमने क्या देखा था, solids के बीच में देखा था friction. हमने पढ़ा लिक्विड और एयर भी एक्सर्ट करते हैं फ्रिक्शन राइट, बट वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है राइट. बट लेट्स स्टडी अबाउट दिस फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड. द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज द लिक्विड एक्सर्ट्स फ्रिक्शन. सो लेट्स गेट टू दैट एक्टिविटी. सो पुल योर स्लीव्स अप. टेक plasticine and make 2 equal sized balls of it. Now take 2 jars, fill 1 jar with water and keep another jar empty. Drop 1 plasticine ball in 1 jar and other in second jar at the same time. In which jar does the ball reach the bottom first and why? You will observe that in the first jar having water, the ball reaches the bottom later than in the case of second jar. Thus, the liquid also exert friction, right? So basically हमने क्या करना है, plasticine ball basically clay type clay लेना है आपने, right? और उसको 2 सिमिलर इक्वल साइज की बॉल बना लेनी है. आपको एक किसमें, पानी के जार में डालना है, दूसरा लिक्विड मतलब खाली जार में डालना है. तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले किस में नीचे बॉल जाएगी, राइट? एयर में, एयर के केस में वाटर बॉल सबसे नीचे चली जाएगी. पानी में क्या होगा, धीरे से जाएगी, राइट? जल्दी से नहीं पहुंच पाएगी. तो हम क्या देख रहे हैं कि लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन, राइट? इससे हमें क्या समझ आया कि पानी में भी पानी ने बॉल के ऊपर फ्रिक्शन लगाया, जिसकी वजह से क्या वो धीरे से नीचे पहुंचती है, राइट? Now let's study about the methods of reducing friction in liquids. So first is, ships and boats are given in a special streamlined shape so as to offer a minimum amount of friction
while moving through water. It is a special shape of a body around which air can flow fast easily, offering minimum amount of friction. Right? तो हम कैसे अब रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन लिक्विड में? जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो शिप्स और जो बोट्स होती हैं वो क्या स्ट्रीमलाइंड एक पर्टिकुलर शेप में ही बनाई जाती है. राइट? तो ये क्यों होता है? जिसकी वजह से जो उसके अराउंड पानी आता है, राइट, वो क्या होता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. राइट? वहाँ पे जो एयर मूव करती है, राइट, उस फ्लो से क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन. सेकेंड थिंग, the streamlined shape of bodies of fishes and all other marine animals help them in reducing the force of friction between their body and water through which they move. Right? Again, तो जो भी कहाँ पे मरीन एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा फिशेस की कैसी बॉडीज होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडीज. तो ये भी क्या करती है? हेल्प करती है किसमें? फ्रिक्शन रिड्यूस करने में. नेक्स्ट थिंग, while swimming, a swimmer tries to streamline his body so that he experiences least friction due to water. Right? तो बेसिकली स्विमर क्या करता है? अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन पोजीशन में लेके आता है, जिसकी वजह से उसको कम फोर्स लगानी पड़े, फ्रिक्शन कम लगे. सो लेट्स गेट टू दिस क्वेश्चन which is true and false. You have to answer this question based on your understanding. So let's move to the next page. Now let's study about the friction due to air. Friction arises even when an object is made to move through air. This could be understood by the following activity. Okay, so let's pull your sleeves up. Take a flat sheet of paper and crumpled paper ball. Okay, hold the flat sheet of paper at some height in one hand and the crumpled paper ball in another hand. Now allow both of them to fall on the ground simultaneously from the same height. Which will reach the ground fast? You will notice that the crumpled sheet reaches the ground first. This happens due to the fact that the flat sheet of paper has a large surface area, so it experiences a great force of friction while passing through it. Right? So आपको क्या करना है? एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर लेना और एक क्रम्पल्ड उसको क्या बॉल के फॉर्म में कर लेना है. अगर आप दोनों को ही सेम हाइट से सेम टाइम में ड्रॉप करोगे तो आप क्या देखोगे? बॉल्स जल्दी नीचे आ जाती है. राइट? और एयर क्या, जो उसमें शीट ऑफ पेपर है वो क्या धीरे से आएगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शीट ऑफ पेपर का एक लार्ज सरफेस एरिया से एज कंपेयर टू व्हाट? बॉल. राइट? जो आपने क्रम्पल्ड पेपर था आपका ऐसा. Now let's study the methods of reducing friction in air. So one of the method is the bodies of airplanes are made streamlined or to ensure the minimum friction as they move through air. Right? तो जो एयरप्लेन्स की बॉडी होती है वो क्या स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं एयर में. राइट? नेक्स्ट, इन नेचर द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड इन अ मैनर that they experience a minimum friction while flying in air. Right? तो और क्या करते हैं? जैसे आपने नेचर में क्या देखा होगा, जो बर्ड्स होती हैं या फिर जो फिशेस भी होती हैं, वो किस तरीके से, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो क्या एक अलग सी शेप होती है जिसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलेंगे, जो क्या करती है? मिनिमम कर देती है फ्रिक्शन एयर में. ऑल ऑटोमोबाइल्स लाइक मोटरसाइकिल, कार, बस एक्सेट्रा शेप space launch vehicle are specially designed to minimize the effect of friction of air. Right? तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं या जो रॉकेट्स होते हैं वो भी इस तरीके से बनाई जाती है ताकि एयर का फ्रिक्शन कम लग सके. राइट? नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. डू यू नो दैट अ शूटिंग स्टार इज ऑल्सो नोन एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर? यस, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर इज अ शूटिंग स्टार ऑन अ मेट्रोर. Shooting stars are actually stone-like objects that enters the Earth's atmosphere from space. Since they have a very high velocity, so the friction due to the air is extremely high. Due to this high friction, the temperature of meteors rises such a high degree that they catch fire and begin to glow. Thus, the heat generated due to the friction of air is so large that they usually get evaporated before reaching the surface of air. Only very large meteors can reach the earth surface and they are known as meteoroids. Right? तो देखो, आपने शूटिंग स्टार का भी देखा है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर. तो क्या होता है? बाहर स्पेस में बहुत ही हाई स्पीड से क्या होता है? ये मेटेरियल्स घूम रहे होते हैं. राइट? जैसे ही क्या होता है, बहुत ही हाई वेलोसिटी से जब कोई भी मेटेरियल जो हमारे अर्थ के सरफेस के पास आने लगता है तो क्या होता है?
बहुत ही हाई वेलोसिटी से जब फ्रिक्शन उस पर लगता है, राइट, क्योंकि एयर में भी फ्रिक्शन है, राइट, जब एयर में फ्रिक्शन लगता है उस पर तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, वो फायर कैच कर लेता है, राइट, उसमें हीट जनरेट होती है तो क्या होता है, फायर आ जाती है, जिसकी वजह से हमें वो ग्लो करता दिखता है, हम उसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार, राइट। बट यूजुअली क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे पहले वो अर्थ पे पहुंचे उससे पहले वो इवेपोरेट हो जाते हैं, राइट। बट अगर कुछ जो बहुत बड़े मेटर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो अर्थ सरफेस पे पहुंच पाते हैं, थोड़े से पहुंच पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स, राइट। तो यहाँ पे भी क्या, फ्रिक्शन ऑफ एयर, देख रहे हैं हम कितना इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स गेट टू द वर्ड फाइंडर्स। The force, what is friction? The force acting along the two surfaces on contact which opposes the motion of one body over the other. Static friction, the friction which comes into play when the objects are at rest relative to each other. Sliding friction, the friction which comes into play when a body slides over another body. Rolling friction, the friction which comes into play when a body rolls over another body. Ball bearings, tiny steel balls which are placed between the moving parts of a machine in order to reduce friction. Lubricants, the substances which reduce friction. Streamline, the shape which is narrow in front and broad in the middle part, which offers minimum friction when moved through air or water. Now let's take a look on the following points. So let's move to the next page. Friction is a force that plays a role whenever two surfaces are rubbed against each other. This force acts in the direction that is opposite to that of the motion of the moving object as well as the applied force. Several activities such as walking, driving, writing and fixing a nail on the wall would not possible if there was no friction. The force of friction between two bodies largely depends on the nature of the surfaces on contact. If the surfaces are rough, friction may be more. But if the surfaces on contact are smooth, less friction is produced. Friction makes all moving objects come to stop after some time. Friction can be static friction, sliding friction and rolling friction. Friction is a problem in smooth running of machines since it wears out moving parts. The basic idea of reducing friction is to fill up the irregularities to get smoother surface. Lubricants are used to reduce friction. Friction can be reduced by using smooth wheels because rolling friction is always less than the sliding friction. Streamlined shapes of aeroplanes, ships and cars are designed to minimize friction. So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.